నువ్వు నవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోమాకే, నా గుండెలేనే గిల్లిపోమాకే, చిన్ని చిన్ని కల్లే అందం, ముదు ముదు మాటలు అందం, బుజ్జి బుజ్జి బుగ్గల మెరుపే ఎంతో అందమే, నువ్వు నవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోమాకే, నా గుండెలేనే గిల్లిపోమాకే. Love this film, all-time favorite. Mad, Manoj Atta, Ashoka, Manoj, अशोक, गलत बोल दिया क्या? नहीं, मनोज, अशोक, दामोदरन, डीडिया, ड्रग डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल था, पीएच 1.64 फार्माकोलॉजी. अभी के प्रेजेंट डीसीजीआई कौन है? आई गिव होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू. Please do let me know in the comment section who is the present Drugs Controller General of India. Waiting in the lovely beautiful comments. So, clinical trials in India. First of all, let us have a look at what are the particular norms for conducting clinical trials in India. So, clinical trials in India must be conducted as per number 1, Indian Good Clinical Practices Guidelines. I'll be talking about these guidelines in a short while. Number 2, most important, Declaration of Helsinki, which I'll be explaining to you in a short while as well. Declaration of Helsinki. Then number 3, National Ethical Guidelines. National Ethical Guidelines for biomedical and health research involving human participants. Okay, the year when they were formulated was 2017. Clear so far? Great. Let's proceed further then. Number 4 is Drugs and Cosmetics Act, which was formulated in the year 1940. And Drugs and Cosmetic Acts as well as Drugs and Cosmetics Rules, which was proposed in the year 1945. And last but not the least, very important, extremely important, the latest one, that is Drugs and Clinical Trial Rules in the year 2019. Clear so far? Now, making this whole process very easy, first of all, DDR is equal to $1 billion, and my favorite character of this film. Must watch film. Meaning it's the most hilarious film of my life. Laugh out loud, lol. Okay, so drug development, DDLA, and approval process, very expensive, $1 billion per new drug. Now, होड़ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया all is well, अरे पापे all is well. न्यू स्टूडेंट फ्रेशर रणछोड़ दास श्यामल दास छाछड़ या रांचो मेडिकल कॉलेज में घुस गया इंजीनियरिंग कॉलेज के बजाय. तो सोचो अगर रांचो मेडिकल कॉलेज में घुसेगा तो क्या होगा, उसका भी टेस्ट होगा. उसको क्या कहते हैं आप लोग? सोच रहे में रैक नहीं, प्री क्लिनिकल स्टडी यार. हम लोग क्या अच्छे लोग हैं, सब वे लोग हैं, हम लोग प्री क्लिनिकल स्टडी करते हैं. अब अगर फ्रेशर या रांचो passes the seniors pre-clinical test, तो फिर he enters the medical college in India. IND stands for India, ठीक, Investigational New Drug Application, which is filed with the Drug Regulatory Authority of India, that is the DCGI or the Drug Controller General of India. अब सीनियर जो हेल्दी और फिट हैं उन्होंने फ्रेशर को ले लिया हेल्दी पीपल में. आई एम क्लोजेस्ट टू माई सीनियर्स, नॉट दैट मच टू माई सुपर सीनियर्स ऑफ मणिपाल. ऑब्वियसली जो 6 महीने सीनियर होते हैं उनसे ज़्यादा हो ही जाते हैं. मेरे में तो 6 महीने का, अब तो 1 साल का बैच है. सो देयरफॉर सीनियर्स आर हेल्दी एंड फिट, फेज 0 एंड फेज 1 ऑफ द ट्रायल. क्लियर?
अब फ्रेशर इज नाउ ब्रूटली रैग्ड बाय सुपर सीनियर। एक तो करेला ऊपर से नींद चढ़ा, तो वैसे ही फ्रेशर परेशान है, सीनियर्स तो उन्हें प्यार से रखा, बट सुपर सीनियर्स ने रैंचो की बैंड बजा दी। सो अब ये जो सुपर सीनियर उसको रैग कर रहे हैं, ये बेचारे डिजीज्ड हैं, ठीक है, डिजीज भी हैं, अनहेल्दी भी हैं, अनफिट भी है। अब भैया रैंचो को आया गुस्सा। सुनाओ, रैंचो और प्रॉपरली सेड आमिर खान ने प्लॉट किया था ना रिवेंज, जब ट्यूबलाइट क्या किया था उसने, कुछ तार लगा दी थी और उस पर किसी सीनियर ने पेशाब कर दिया था और फिर क्या हुआ था सबको पता है। सो रैंचो प्लॉट्स रिवेंज अगेंस्ट फेज 2 एंड फेज 3 सीनियर्स ऑफ ट्रेल्स ने उनको तो छोड़ दिया, सुपर सीनियर्स की रैंचो ने बैंड बजाई। और अब रिवेंज लेने के बाद अब रैंचो पहुंच गया फाइनल। आप पूछोगे सर ये क्या है, फोर्थ फेज में सीधा, तो भैया 3 इडियट्स दोबारा जाके देख लेना। फर्स्ट हाफ में फर्स्ट ईयर, सेकेंड हाफ में फाइनल ईयर, सेकेंड थर्ड ईयर खा गए वो लोग। तो मैं भी यही करूँगा, इस पिक्चर में 3 इडियट्स की तरह मैं भी फॉलो सूट करूँगा और फॉलो सूट इसी एंगल से अपनी कहानी दिखाएंगे। अब फाइनल ईयर पहुँच गया। अब क्या हुआ, फ्रेशर या डॉक्टर, जब डॉक्टर बन गया, डॉक्टर रैंचो और डॉक्टर रणछड़ दास श्यामल दास छाछड़ एंटर्स द इंडियन मार्केट। अब उसको 2 साल लगे अपने आप को एस्टैब्लिश करने में, अपनी प्रैक्टिस को। एंड ऑफ स्टोरी पीरियड। अब इतनी बड़ी कहानी से आपको सब कुछ कंठस्थ हो जाएगा। पहली बात, रैंचो इज अ फ्रेशर, फ्रेशर इज इक्वल टू रैंचो इज इक्वल टू लीड कंपाउंड। जो लीड्स आइडेंटिफाई होता है, जो एक लीड कंपाउंड निकल के आता है, उसको हम इन विट्रो, टी फॉर टेस्ट ट्यूब, तो इसको टी फॉर टेस्ट ट्यूब मतलब बाहर करते हैं, इन विवो मतलब बॉडी के अंदर, बता चुका हूँ। SAR इज बेसिकली, SAR क्या होता है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। वेरी गुड, जिसने भी बोला एक्सेलेंट, हैट्स ऑफ। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के मॉडल में पहले इसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही मूव ऑन टू एनिमल स्टडीज विच आर द प्री क्लिनिकल वन, जिसमें कि लीड कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं, लीड कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन। देन सब सही गया तो फेज 0 स्टडी से स्टार्ट करते हैं, जिसमें 10 से 15 भी हेल्दी सब्जेक्ट। मैंने कहा इसके सीनियर्स अभी हेल्दी हैं, हेल्दी सीनियर्स वाली कौन सी थी, एक्सेलेंट, फेज 0 एंड फेज 1। माइक्रो डोजिंग मतलब वेरी वेरी लो डोज, हम बहुत बेसिक स्टडी करते हैं। अरे हम पीके बोलो, उसमें भी आमिर खान था। फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक स्टडी बहुत ही लो लेवल पे, ठीक। अब फेज 1 में भी हेल्दी सीनियर्स की रैगिंग चल रही है, तो फेज 1 इज डीलिंग विद सेफ्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फेज 2 में 100 से 300 हेल्दी मरीज। अब पेशेंट्स आ गए हेल्दी, बट उनको और कोई कोमॉर्बिड इलनेसेस नहीं है, दे आर पेशेंट, बट कोई ऐसी ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए हेल्दी हैं पेशेंट्स अभी, ठीक है। फेज 2 फेज 3 के जो सुपर सीनियर्स थे रैंचो के, इसमें हम मेजर करते हैं एफिकेसी एंड सेफ्टी। एफिकेसी क्या होता है बताइएगा मुझे, द लवली ब्यूटीफुल कमेंट सेक्शन, वेटिंग फॉर ब्यूटीफुल कमेंट्स। देन फेज 3 में 300 से 3000 मरीज, अब ये मरीज हैं, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे हम, एफिकेसी या सेफ्टी रियल लाइफ सिनेरियो में, ठीक, इन द रियल लाइफ सिचुएशन। फॉलोड बाय फेज 4, जिसमें जितना मैं चाहता हूँ व्यूज़ या सब्सक्राइबर मेरे यूट्यूब में, तो क्या मज़े आ जाए। 1000 से 3000 मरीज, एफिकेसी या सेफ्टी इनकी देखी जाती है इन रियल लाइफ, और फिर फॉर अ पीरियड ऑफ लेस दैन 2 years, 2 साल से कम का पीरियड। अब फेज 4 में क्या है, जब रैंचो डॉक्टर बन के निकला, तो नाउ द ड्रग इज एस्टैब्लिश्ड, थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट, बहुत हज़ारों मरीजों में देते हैं, और इसमें बेसिकली कोई रेयर एडवर्स इफेक्ट अगर हो उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है, ठीक है। और टाइम पीरियड इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 2 years। एंड ऑफ स्टोरी। नाउ समराइजिंग एवरीथिंग, ठीक है, ग्रेट। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। सबसे पहले इन विट्रो स्टडीज, इन विट्रो स्टडीज, उसके बाद एनिमल स्टडीज, उसके बाद ह्यूमन स्टडी, उसके बाद ह्यूमन सेफ्टी, उसके बाद एफिकेसी एंड सेफ्टी। एफिकेसी क्या होगा आप लोग मेरे को बताओगे, ठीक। ये देख रहे हैं टेस्टिंग कंडीशंस में, वर्क रियल लाइफ में नहीं। अब इसमें क्या देखेंगे हम, एफिकेसी सेफ्टी इन रियल लाइफ, वो तो हम टेस्टिंग कंडीशंस में देख रहे थे। अब हम रियल लोगों को देंगे, मरीजों को देंगे,
सब बता रहा हूँ, थोड़ा सब्र करो। अब वो दवाई मार्केट में आ चुकी है, ड्रग इन मार्केट। अब इसमें दो क्राइटेरियाज आप लोगों को याद करने हैं, पहला तो लेस देन 2 ईयर और दूसरा मोर देन 2 ईयर्स। ठीक, क्या फ़र्क होंगे अभी सब बताता हूँ। सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं, इन विट्रो स्टडीज़ लैब, फिर इसको कहते हैं प्री क्लिनिकल फेज। ये फेज 0, 1, 2, 3, 4 और नाउ द ड्रग इज established drug. Am I clear so far? Great. So now moving on to what happens here. Compound is synthesized. अभी सिर्फ कंपाउंड की सिंथेसिस करें, अभी रांचो बन रहे सिर्फ। अभी रांचो को हमने आइडेंटिफाई नहीं किया, रांचो को आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पर। लीड कंपाउंड इज आइडेंटिफाइड। ठीक, फेज 0 में कितने पेशेंट्स में करते हैं? हाँ, वेरी गुड, एक्सेलेंट, लवली, ब्रिलियंट, 10 to 15 हेल्दी पीपल। फेज 1 में 20 to 80 हेल्दी पार्टिसिपेंट्स। फेज 2 में 100 से 300 हेल्दी पेशेंट्स। अब ये हेल्दी पेशेंट्स हैं। ठीक, दिस कैन टाइम पूछ सकते हैं आपसे, तो इट कैन लास्ट फॉर डेज, दिन से हफ्ते लग सकते हैं। उसके बाद 300 से 3000। अब ये पेशेंट्स हैं, सिक पेशेंट्स, रियल लाइफ सिचुएशन, तो इसमें वीक्स और मंथ्स। ओके, और फाइनली 1K जितने मैं सब्सक्राइबर्स और वो चाहता हूँ व्यूज, 1K से 3K पेशेंट्स फेज 4 में। दिस कैन लास्ट फॉर सेवरल मंथ्स, बहुत महीनों तक या इवन सालों तक चल सकते हैं ये। ठीक, फेज 4। अब एक बार ड्रग ये 2 साल से कम में, अब ये ऑब्वियसली मैं आपको बता चुका हूँ, थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स, बहुत हज़ारों में, इवन लाखों तक में हो सकता है, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है मार्केटिंग अप्रूवल के लिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वजह से होता है कि एक बार एस्टैब्लिश हो जाए, सो रेयर एडवर्स इफेक्ट्स आर रिपोर्टेड हियर। ठीक, अब ये मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप होती है इसमें होता है सेफ्टी, एफिकेसी, टेस्टिंग। अभी किसमें? जानवरों में, एनिमल्स में। पहले तो टेस्ट ट्यूब में किया, टेस्ट ट्यूब से निकले जानवरों में। अब जानवरों के बाद जब इंसानों पर आए तो प्रीलिमिनरी फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक स्टडी करी यूजिंग माइक्रो डोजिंग। अब ये फेज 1 की मेन है सेफ्टी एंड डिटरमाइन द आइडियल डोज विदाउट साइड इफेक्ट। मेरे को आप डिफरेंस बताएंगे साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट का इन द ब्यूटीफुल कमेंट सेक्शन। वेटिंग इन द लवली ब्यूटीफुल कमेंट सेक्शन। फिर एफिकेसी की, सेफ्टी की टेस्टिंग कहाँ होगी? कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, मतलब हमारे पास एक एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड है, उसमें हम करेंगे। इसमें तय फ़र्क है, दोनों में एफिकेसी सेफ्टी टेस्ट हो रहे हैं, इसमें भी यही हो रहा है, बट इसमें जो हो रहा है दैट इज हैपनिंग इन अ रियल लाइफ एनवायरनमेंट। ठीक, अब अगर 2 साल से कम है तो आपको क्या मिलेंगे? या ऑब्वियसली आपको कुछ कॉमन एडवर्स इवेंट्स मिल जाएंगे। कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स आर रिवील्ड। 2 साल से कम और 2 साल से बाद। ठीक है, क्लियर? ओके, बाय।